Let's take a moment. We're going to take 10 seconds. We're going to do another exercise. I like doing exercises with you guys. 10 सेकंड का एक वक्फा लेंगे और एक तजर्बा करेंगे. We're going to close our eyes and you're going to try to think of nothing starting now. 10 सेकंड का वक्फा लेंगे और हम कुछ नहीं सोचेंगे. All right, we can open our eyes now. So, the purpose of the exercise is it feels very uncomfortable, maybe unusual to just sit and do nothing. Yes? ये बड़ा मायूब सा लगता है कि जब सिर्फ हम आंखें बंद करके बैठ जाएं, कुछ भी ना करें. But this is the challenge that we face as Christians in the modern world today, that we don't know how to pause and rest. इस मॉडर्न दुनिया में ये बड़ा मुश्किल है और बड़ा ही इट्स वेरी डिफिकल्ट. बड़ा मुश्किल होता है कि हम सिर्फ पॉज लें, ब्रेक लें और कुछ और ना सोचें. You'll see that even today there was song presentations, there will be a play, and even in your personal life, you have so many events coming up before Christmas. You all are very busy people. आप देखेंगे कि अभी हमने गीत गाए, आप प्ले देखेंगे और बहुत सारी और चीजें चल रही हैं और बड़ा मुश्किल होता है कि अपने आप को उसकी तरफ फोकस करके रखना. What I want to talk about today is the joy of Christmas. मैं आपके साथ क्रिसमस की खुशी को बारे में बात करना चाहता हूँ. Being busy doesn't necessarily mean that we're joyous. मसरूफ होने का ये मतलब नहीं है कि आपके पास बड़ी खुशियां हैं. A lot of people during this Christmas season feel actually the opposite. They feel stressed out, burnt out, depressed, anxious. Maybe they feel like a failure. A lot of people are grieving during this season as well. ये जब मौसम आता है क्रिसमस का, तो इसमें बहुत सारे लोग ये नहीं कि वो खुश होते हैं, बहुत सारे लोग दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, मायूस होते हैं. वो इस सीजन को लेकर अच्छी तरह उसको सेलिब्रेट नहीं कर पाते. So if Christmas is supposed to be about joy, and everybody keeps talking about joy, then the question is, why does it feel so stressful? अगर क्रिसमस एक खुशी का, शादमानी का टाइम है, तो फिर ये क्यों है कि हम में से बहुत सारे लोग दुखी नजर आ रहे होते हैं, परेशान नजर आ रहे होते हैं, बोझ के नीचे दबे हुए नजर आ रहे होते हैं. The purpose of the exercise was to help you practice rest, because for the next 20 minutes, I want you all to put aside whatever you have to do after church, whatever your errands are, whatever events you have to go to, and try to focus not on my voice or not what Pastor Peter has to say, but on what God is trying to speak to you. Because even now, there might be a message before the end of the year that He wants you to receive. मेरा इस तजर्बे को करवाने का मकसद ये था कि हम फोकस होना सीखें, क्योंकि अगले 15-20 मिनट में मैं ये चाहता हूं कि खुदा जो आपसे बात करना चाहता है वो आपकी जिंदगियों के अंदर जाए, ताकि हम शादमानी के राज को सीख सकें. So Christmas joy begins with the removal of fear. क्रिसमस की जो खुशी है, इसका मतलब है कि हमारी जिंदगी से डर खत्म हो. We're going to take a look at Luke chapter 2, verse 9 to 11. I'm going to read it for you, and as our youth members have read it. An angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. But the angel said to them, "Do not be afraid. I bring you good news that will cause great joy for all the people. Today in the town of David, a Savior has been born to you. He is the Messiah, the Lord." This is the word of the Lord. जैसा कि लूका की अंजील के एक हिस्सा को आपके सामने पढ़ा गया, और खुदावन का फरिश्ता उसके पास आ खड़ा हुआ और खुदा का जलाल उनके गिर्द चमका और वो नहायत डर गए. मगर फरिश्ते ने उनसे कहा, डरो मत, क्योंकि मैं तुम्हें बड़ी खुशी की बशारत देता हूं, जो सारी उम्मत के वास्ते होगी, कि आज दाऊद के शहर में तुम्हारे लिए एक मुनज्जी पैदा हुआ है, यानी मसीह खुदावंद. Notice that the angel does not force a sentence or an emotion. He doesn't start his wording to Mary with saying, "Be joyful."
he starts by removing fear. Do not आपने be गौर afraid. किया है कि फरिश्ते ने कोई ऐसा नहीं कहा कि जी शादमान ये ढोल बजाओ, उछलो कूदलो, या कुछ उसने कुछ ऐसा नहीं कहा. उसने ये कहा है, या कोई इमोशनल बात की हो, उसने सिर्फ ये कहा है, डरो मत. This is really important because fear narrows our thinking. Fear keeps us in a cycle of anxiety, and fear is what a lot of us struggle with during this season. सबसे पहला मैसेज जो है वो डरो मत का आया, क्योंकि डरना जो है वो हमारी अंदर एक एंजाइटी को, एक परेशानी को, एक फिक्र को पैदा कर देता है. Isaiah chapter 9 verse 2 says, यशायाह की किताब 9वां बाब उसकी दूसरी आयत में लिखा है, "The people walking in darkness have seen a great light." जो लोग तारीकी में चलते थे उन्होंने बड़ी रोशनी देखी. See, darkness is not being ignored here. The angel is not ignoring Mary's emotion. What I want you to take away from this point is that the fear and the struggles that you have, we are not ignoring them. They are not being dismissed. They are valid. But it is in spite of those fears that we are joyful. So Christmas starts with removing the fear that we have. जब फरिश्ते ने ये मैसेज दिया तो हम तारीकी को इग्नोर नहीं कर रहे, हम उसे दरगुजर नहीं कर रहे, हम उसे नजरअंदाज नहीं कर रहे. डर वहां पर है, तारीकी भी वहां पर है, लेकिन बिसाइड ऑल सर्कमस्टांसेस, जो कुछ हमारे इर्द गिर्द चल रहा है, परेशानी है, दुख है, तकलीफें हैं, मायूसी है, उसके अंदर रहकर हम कैसे क्रिसमस की खुशी को सेलिब्रेट कर सकते हैं. Let me give you an example of what this actually looks like in practical life. We've all been in hospital rooms at some point for a loved one or for ourselves. Think of that feeling that when you're waiting in an emergency room and the doctor comes out and tells you, the person that you're maybe there for, or maybe it's for yourself, the doctor tells you they're stable. You don't immediately jump up and start throwing a party. Maybe that's an emotion you feel after, but in that moment, peace comes on your heart. You feel relaxed, your shoulders loosen up. कभी आपने गौर किया, आप में से बहुत सारे लोग हॉस्पिटल्स में गए होंगे, आपके लव्ड वन जब कभी ऑपरेशन थिएटर या अंदर होंगे और डॉक्टर आके आपको एक खुशी की खबर देता है, तो एकदम से आप उनके ऊपर कन्फेटीज नहीं फेंकते डॉक्टर्स के ऊपर, या कोई सायरन बजाना या बाजा बजाना शुरू कर देते हैं, लेकिन एक रिलीफ, एक आसानी एकदम से उस खबर से आपकी जिंदगी में आ जाती है और आपकी मायूसी खत्म हो जाती है. वो परेशानी जो आपकी पेशेंट्स के मुतालिक होती है, अपने अजीज के मुतालिक होती है, वो एकदम से ऐसे काम डाउन, आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाते हैं, पुरसकून हो जाते हैं. So this is the first point that I want you to take away, that the joy of Christmas is not screaming, it's being steady. ये मेरा पहला पॉइंट कि क्रिसमस की खुशी जड़ी है, ये चीखा मारना नहीं है जड़ी कि आजकल हो रहा है, ये डांस पार्टियां नहीं है, चीखना, चिल्लाना, बजाना. क्रिसमस की खुशी एक डिफरेंट है. The second point we look at is biblical joy is deeper than just the emotion of happiness. जो दूसरी बात मैं आज आपसे करना चाहता हूं कि जो खुदावंद की तरफ से शादमानी है वो सिर्फ एक जज्बा नहीं है, ये एक इंतहाई गहरी बात है जो मैं आप तक पहुंचाना चाहता हूं. Let's take a look at Nehemiah chapter 8 verse 10, and it says, Nehemiah said, "Go and enjoy choice food and sweet drinks, and send some to those who have nothing prepared. This day is holy to our Lord. Do not grieve, for the joy of the Lord is your strength." नहमिया उसका 8वां बाब उसकी 10वीं आयत में लिखा है, और नहमाया जो हाकिम था, इज़राया काहिन और फकीर ने लावियों को जो लोग सिखा रहे थे, सब लोगों से कहा, आज का दिन खुदावंद तुम्हारे लिए मुकद्दस है, ना गम करो ना रो. सब लोग शरीयत की बातें सुनकर रोने लगे. फिर उसने उनसे कहा कि खुदावंद की शादमानी मेरी कुवत है. What's happening in this chapter and in this situation is the people of Judah,
have just finished rebuilding the wall around Jerusalem. It's not as high or as thick as some of the other cities, certainly not impressive. But what is Nehemiah saying to them? The joy of the Lord is your strength. नहमिया के मुतालिक आप गौर से अगर इसको पढ़ें, उन्होंने अपना काम मुकम्मल किया है, दीवार बना रहे थे, लेकिन नहमाया उनको क्या बता रहा है? यहाँ पर रो भी रहे हैं लोग, अपने गुनाह उनको याद आ रहे हैं, लेकिन वो कह रहा है ये रोने का वक्त नहीं है, ये परेशानी दुख का वक्त नहीं है, ये सेलिब्रेशन का वक्त है, क्योंकि खुदावन की शादमानी हमारी कुव्वत है. So here's the difference between biblical joy and worldly happiness. Happiness reacts to circumstances. Biblical joy remains anchored despite the circumstances. जो हैप्पीनेस है, जिन्हों ची हैप्पी बर्थडे करने हैं, वो ਜਦੋਂ कोई चीज हैपन होती है, उसका मतलब है कुछ हुआ है, तो फिर आप उसे सेलिब्रेट करते हैं. But it's not biblical. When something happen, you feel happy. लेकिन जो biblical joy है, वो different है. Let me give you another illustration of this. So imagine a boat. When a boat lowers its anchor into the ocean, the boat doesn't stop facing waves. It doesn't stop facing the challenges in the sea. It still rocks and shakes. But the anchor keeps it steady, it keeps it stable, and it keeps it in place. That's what biblical joy is supposed to look like for us. It's supposed to be the anchor of our being rather than a result of our circumstances. मैं आपको जो कलाम की सच्चाई है, शादमानी है, उसके बारे में बताना चाहता हूं. थोड़ी देर के लिए इमेजिन करें कि आप एक बड़ी कश्ती को देख रहे हैं और आप उन मौजों को देख रहे हैं जिसकी वजह से वो लहरें कश्ती को ऊपर नीचे कर रही हैं. हमारी जिंदगी भी कई दफा परेशानियों दुखों की तरफ ऐसे ही होती है, पर वो कश्ती कैसे महफूज है? क्योंकि उसने अपना लंगर, जो एंकर होता है, एक वजन जो होता है, वो नीचे फेंका होता है और उसका सहारा जो है, इस वक्त मौजें ऊपर तो नजर आ रही हैं, लेकिन उसका जो एंकर है वो उस पूरी कश्ती को संभाले हुए है. So this is point number 2, that biblical joy should not be impacted by what you're going through, because throughout the entire year, not just Christmas, we all face many different types of challenges. Our joy cannot be rooted in the circumstances. It has to be rooted in God. हमारी खुशी हमारे हालात और जज्बात के ऊपर मुनसर नहीं होनी चाहिए. आज काम ठीक है ते हंस पे, काम खराब है ते रो पे, हालात बुरे हैं तो एकदम से मायूस खुदा से दूर हो गए. बिब्लिकल जॉय, जो जिस खुशी का वादा खुदा करता है, वो डिफरेंट है. हम मौजों को नहीं देखेंगे, हम अपने एंकर को देखेंगे. Here's the third point. तीसरा पॉइंट जो है वो मैं आपके सामने रखना चाहता हूं. We talk a lot about Jesus during Christmas season. हम यीशु के बारे में बहुत ज्यादा क्रिसमस सीजन बात करते हैं. But let's look at what Jesus himself says about joy. पर आओ जरा चंद लम्हे देखें कि यीशु ने खुशी के मुतालिक क्या कहा. The Gospel of John, chapter 15, verse 9 to 11 says, यूहन्ना की अंजील 15 बाब उसकी 9 से 11 आयत को देखेंगे. As the Father has loved me, so I have loved you. Abide in my love. If you keep my commandments, you will abide in my love, just as I have kept my Father's commandments and abide in his love. These things I have spoken to you, that my joy may be in you and that your joy may be full. This is the word of the Lord. जैसे बाप ने मुझसे मोहब्बत रखी, वैसे ही मैंने तुमसे मोहब्बत रखी. तुम मेरी मोहब्बत में कायम रहो, और अगर तुम मेरे हुक्मों पर अमल करोगे तो मेरी मोहब्बत में कायम रहोगे, जैसे मैंने अपने बाप के हुक्मों पर अमल किया और उसकी मोहब्बत में कायम हूं. मैं ये बातें इसलिए तुमसे कहीं कि मेरी खुशी तुम में हो और तुम्हारी खुशी पूरी हो जाए. So here's the point. Simply this. Jesus does not say that I'm going to give you joyful moments. He says, my joy may be in you. See, this is
an amazing revelation from the Word of God, because Jesus endured suffering, but joy is not the absence of hardship. It's the assurance of purpose in our life. अगर आप गौर करें तो यहाँ पर खुदावंद यीशु मसीह किस बात पर, क्या बात उन्हें बता रहे हैं। खुदावंद यीशु मसीह ने ये नहीं कहा ये खुशी तुम ले लो। खुदावंद ने कहा है कि मेरी खुशी तुम में हो, और जो खुश होना है वो ये नहीं है कि आपके इर्द गिर्द कोई परेशानी ना हो, कोई दुख ना हो, कोई मायूसी ना हो, कि आप हर वक्त पेरिस में रह रहे हैं या स्विट्जरलैंड में रह रहे हैं, ये मेरे वल्लों है, ठीक है। सो ये नहीं है कि आप एक ऐसे एटमॉस्फेयर में रह रहे हैं और जॉयफुल है और बस फिर ही आप खुश हैं, पर हालात कैसे भी हों आप खुश रहना सीख सकें। This is why modern Christmas leaves us feeling very empty. इसीलिए अगर आप मॉडर्न दौर में देखें तो क्रिसमस हर इंसान के अंदर एक खालीपन वो नजर आता है कि चेहरे इनके बड़े खुश है पर अंदरों खाली ने। We have been taught that joy during Christmas season will come based on results, whether it's social media, whether you post great Christmas pictures, how many places you went to during Christmas, how many parties you had, how many people you hosted. So we all feel like we're in a race, and we all feel like we have to continuously keep up with the world around us to feel joyful during this Christmas season. क्रिसमस का सीजन जब आता है ऐसे जैसे एक दौड़ लग जाती है, ऐसे जैसे हमने कुछ अचीव करना है, चाहे वो चर्चेस हों चाहे वो घर हों, एक दौड़ होती है। और मैंने खुद देखा है कि बहुत सारे लोग क्रिसमस के मौके पर बड़े एक्टिव होते हैं, जी हुण साडे घर जरूर आना है। वो बाकी सारा साल हम देखते हैं कोई खुशी नहीं, पर बड़े दिन ते जरूर खुशी आती। तो ये एक दौड़ है, हम अपनी तस्वीरें पोस्ट करते हैं, हम अपने चेयरफुल चेहरे दिखाते हैं पर अंदर से खाली होते हैं, क्योंकि हम एक दौड़ में हैं। हम सोशल मीडिया को देखते हैं, हम उनसे देखते हैं कितने लोगों ने ये वॉच किया है, कितने लोगों ने हमें कमेंट किया है, हम अपनी अचीवमेंट्स दिखाते हैं। और आजकल तो आप कम्युनिटी ग्रुप्स में भी बहुत सारा कुछ देखते हैं, पीपल दे जस्ट टॉक अबाउट देयर सक्सेस, क्योंकि वो सोचते हैं तजर्बा जो कुछ अचीवमेंट है दुनिया में करेंगे तो क्रिसमस की खुशी है, पर ये क्रिसमस की खुशी नहीं है। While some of those things have pressure on us, they're not all bad, and we can celebrate some of those good things. However, there's a place and a time for those things. So we don't condemn every single, we're not condemning having parties or posting online or sharing what you're doing with your loved ones. That's not what it is. What I'm simply trying to share is that Christmas is not just for the people who seem to have it all together. Christmas is not just for the perfect looking family or the perfect person. Christmas is for the brokenhearted. Christmas is for those who are weary. Christmas is for those who are grieving, who have lost a loved one. Christmas joy is for all of us, no matter the circumstances. It is not based on what you are able to perform during Christmas time. मैं ये चाहता हूं कि आप क्रिसमस के इस सीजन को याद करते हुए ये ना सोचें कि आप कितने परफेक्ट लग रहे हैं, आपके घरों में प्रोग्राम कैसा रहा, आपने खाना कैसे सर्व किया, आपके हालात कैसे थे, आपके कपड़े कैसे थे। क्रिसमस इज डिफरेंट, और हम इस वक्त क्रिसमस की खुशी को एक डिफरेंट तरीके से सोचें, ताकि वो असल खुशी, वो खुशखबरी जो आसमानों से आई, उसको हम रिसीव कर सकें। So I'm going to give you another illustration for this so that it helps you visualize what this feels like. Imagine being at a party, at a Christmas party, and you have a mask on, and you are forced to wear that mask. I'm sure if you kept it on for a long time, it would feel suffocating because you see everybody else without it. That's what it can feel like when you force someone to be the worldly type of joyful, when you expect people to behave out of a worldly emotion or out of their flesh. But biblical joy doesn't expect you to do that. Biblical joy just asks you to lean into Christ despite your suffering. मैं आपको एक और वाक्य से समझाना चाहता हूं कि क्रिसमस की खुशी को कैसे हम देखते हैं। मिसाल के तौर पर आप एक पार्टी में जाते हैं और वहां पर आपको एक मास्क दिया जाता है कि आपने ये पहन कर रखना है, और आपको बताया जाता है कि यही मास्क आपने पहन के रखना है, और वो जो मास्क है, वो जो आपने फेस कवर कर लिया अपना,
और उसमें ये बताया जाता है कि यू हैव टू लुक नाइस और वो मास्क सिर्फ नजर आना चाहिए, ये आपको सफोकेट करेगा और आप बड़ी परेशानी का सामना कर रहे होंगे अंदर, क्योंकि सही ब्रीथ नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप गौर करें कि क्रिसमस इज नॉट अबाउट दिस कि फेसिंग मास्क अपने हर वक्त अपने चेहरे को बना के रखना है। मुझे याद है, ये मैं अपनी तरफ से आपको बता रहा हूँ कि हम डिज्नीलैंड गए और वहाँ पर कुछ बच्चे थे जो परफॉर्म कर रहे थे फेरीज के ऊपर, और वो किंग एंड क्वींस थे, और वहाँ पर उन्हें ये गाइड किया जाता है कि आपने सिर्फ हंसना है, यू जस्ट नीड टू गिव स्माइल। इनर फीलिंग जो उनकी हैं, वो थके हुए हैं, वो मुश्किल में हैं, वो दुख में हैं, मे बी पेन में हैं, लेकिन उनकी ये जॉब है कि दे हैव टू स्माइल। तो कई दफा हम भी क्रिसमस के मौका पर ऐसे ही बिहेव कर रहे होते हैं, अंदरों थके हुए पर अंदरों कोई खुशी नहीं, पर उन आ गया है सीजन ते खुश होना है। पर क्रिसमस इज नॉट दिस। So, recap for the 3 points that we went over, and then we're going to talk about what to actually do with this information. So, the first thing was Christmas joy begins with the removal of fear. क्रिसमस की जो खुशी है वो हमारे डर को खत्म करती है। We don't need to pretend that we don't have problems. We don't need to act like everything is perfect. What we do need to do is remind ourselves that despite the problems, God is in control. हमें pretend करने की जरूरत नहीं है कि हम बड़े खुश हैं, बस हमें ये जरूरत है कि हम हालात कैसे भी हैं, we are excited, God is with us. How you will know, the second thing is, how you will know if you have biblical joy versus just a worldly happiness is when, regardless of your circumstances, you remain joyful. You remain at peace. As I stated in the hospital example, when the doctor tells you that somebody is stable, peace overcomes your body. That feeling is what biblical joy is like. It remains consistent despite your circumstances. मैं दूसरी बात जो आपको फिर से याद दिलाना चाहता हूं कि कैसे आपको पता लगेगा कि आपकी जिंदगी के अंदर इलाही खुशी है, कि हालात कैसे भी हों, परेशानियां हो, दुख हो, मायूसी हो, फाइनेंशियल क्रंच हो, पर बिसाइड ऑल सर्कमस्टांसेस चीजें बिखर रही हैं, बदल रहे हैं, मौसम, बीमारी है, डॉक्टर्स कुछ आपको फर्क रिपोर्ट दे रहा है, लेकिन उसके अंदर रहकर आप ये कहें कि मैं खुश हूं, आई एम एक्साइटेड। ये क्रिसमस है। So here's what we need to do with this information, what I want you to actually take away. There's a theory in science, a phenomenon, it's known as neuroplasticity. एक फिनोमेना, एक थ्योरी मैं आपको बताना चाहता हूं ताकि आप इसको अपने साथ लेकर जाएं, और इस सीजन में जब आप इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं, चंद दिन रह गए, तो मैं ये चाहता हूं कि आप इसको अप्लाई करें अपने ऊपर। Modern neuroscience confirms a biblical principle that the brain reshapes itself based on repeated focus. जो मॉडर्न, जो जदीदी दौर है, साइंस है, वो इस चीज को प्रूव करती है कि किसी भी चीज को जब आप बार बार रिपीट करना शुरू कर देते हैं तो आपका जहन उसी शेप में आना शुरू हो जाता है। Think of when you guys are clearing snow, when you have a lot of snow in the walkway. The first time you walk through that snow, it'll be difficult. You'll have to struggle a little bit. Maybe your foot goes in a little too deep. But the second time, the third time, maybe the 10th or 15th time, that pathway will have cleared. That's what this concept is, and that's what it does to your brain. When you think of a thought, it's difficult the first time. But when you consistently think of that thought, whether it's positive or negative, your brain begins to build neural pathways in itself that help affirm the thing that you are thinking to yourself. जो चीज मैं आपको बता रहा हूं, प्लास्टिसिटी, इसका मतलब ये है कि जैसे आपने स्नो पे पहली बार चलना शुरू किया, पहली दफा पहला कदम आपको मुश्किल लगेगा, दूसरा उठाएंगे मुश्किल, तीसरा, फिर आप रोज जब उसी पाथ पे चलेंगे, हो सकता है वो बिल्कुल क्लियर हो जाए पाथवे। लेकिन बार बार एक चीज को जब आप रिपीट करते हैं तो आपका ब्रेन, चाहे वो नेगेटिव आप बोलना शुरू करते हैं, आपका ब्रेन वैसे ही बनना शुरू हो जाएगा, चाहे आप पॉजिटिव बोलना शुरू करते हैं, आपका ब्रेन उसी तरह से, यू टीच योर ब्रेन व्हाट टू थिंक, यू टीच योर ब्रेन
how to behave, because brain is not working. Brain will react what you are teaching. जो कुछ आप कहेंगे, brain will react. अगर आप परेशानी के ख्याल उसमें डालेंगे, वो इंटरनेट वांगू परेशानी दे ख्याल ही ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ आएंगे सामने. वो जैसे हम है ना, वो खोलते हैं वेबसाइट, कोई बात करते हैं, शूज की बात कर रहे होते हैं, शूज की ऐड आनी शुरू हो जाती. दिस इज हाउ योर ब्रेन विल वर्क, कि जैसे जो आप सिखाएंगे वही वो काम करना शुरू कर देगा. As Pastor Peter shared, repeated fear strengthens anxiety pathways, repeated gratitude strengthens resilience, repeated trust strengthens emotional regulation. In simple terms, what you practice becomes your default. जो कुछ भी आप प्रैक्टिस करते हो वही आपकी जिंदगी में आ जाता है, वो वैसा ही आप रिएक्ट करते हैं. अगर आप रोज सुबह उठ के परेशानी की खबरें, परेशान उठेंगे, मायूस उठेंगे, तो सारा दिन मायूसी चिनेंगे. जो आप प्रैक्टिस कर रहे हो, व्हाटएवर, अगर झगड़े की बातें करते हैं तो झगड़े ही सामने आएंगे. व्हाटएवर आप स्ट्रेंथन कर रहे होते, आप एग्जाइटी को रिपीट करोगे, परेशानी, कई लोग कहते हैं मैं बड़ा परेशान हूं, वो परेशानी उनकी जिंदगी से कभी नहीं जाएगी. कई लोग वो अपने ब्रेन को कहते हैं आई एम फाइन, गॉड इज विद मी, खुदा मेरी कुवत है, खुदा मेरी शादमानी है, हालात कैसे भी हों उनकी जिंदगी वैसे ही होना शुरू हो जाएगी. उनका ब्रेन उनको पॉजिटिव चीजों की तरफ लेकर जाएगा और आपको नया जोर और नई ताकत दे देगा. See, this is not just a concept that's in the world. This is science explain how the renewal happens, but scripture confirms it. Let me read to you a reference from Romans chapter 12, verse 2. And it says, that's Romans chapter 12, verse 2. Be transformed by the renewing of your mind. So this is not something that modern science discovered. This is something that God has programmed us to do. And this is why it is really important that you remember this Christmas season. Do not be controlled by your emotions. You can choose joy. You can make the active decision to be joyful. Joyful doesn't mean you have to be overacting and jumping around and pretending like everything is good, but it means being stable and consistent. मैं आपको ये नहीं है कि साइंस ने आज इस चीज को दरियाफ्त किया है कि आप खुश कैसे रह सकते हैं. ये तो सदियों पहले कलाम मुकद्दस में लिखा जा चुका है. और अगर आप रोमन्स की किताब उसके 12वें बाब उसकी दूसरी आयत में पढ़ें तो वहां पर लिखा है, बस है भाइयों मैं खुदा की रहमतें याद दिलाकर तुमसे इल्तमास करता हूं कि अपने बदन ऐसी कुर्बानी होने के लिए नजर करो जो जिंदा, पाक और खुदा को पसंदीदा है, और यही तुम्हारी मकबूल इबादत है. और इस जहां के हम शक्ल ना बनो बल्कि अकल नई हो जाने से अपनी सूरत बदलते जाओ ताकि खुदा की नेक और पसंदीदा और कामिल मर्जी तजर्बे से मालूम करते रहो. तो ये साइंस ने दरियाफ्त नहीं किया रिपीटेडली कि आप ऐसा करें, ये खुदावंद के कलाम में लिखा हुआ है. अगर आप गौर करें फिलिपियों के खत में लिखा हुआ है, पॉल ही वाज इन प्रिजन. What he was doing, Paul और Silas, they were saying, they were worshiping God. और फिर वो कह रहे थे खुश रहो. मैं कहता हूं खुश रहो. वो अपनी मार की तरफ नहीं देख रहे, वो अपने जख्मों की तरफ नहीं देख रहे, वो अपने दुश्मनों की तरफ नहीं देख रहे, वो हालात को नहीं देख रहे, वो अपने फाइनेंशियल्स को नहीं देख रहे, वो उस तलवार को नहीं देख रहे जो शायद उनकी जिंदगी को खत्म कर सकती है. बट वो किसको देख रहे हैं? अपने ईमान के बानी, कामल करने वाले यीशु को, जो खुशी का मंबा है. This is what choosing joy looks like practically, as Pastor Peter just shared. It's naming what you are grateful for. It's worshiping when you are in a war in your mind. It's choosing to pray over isolation. It's choosing to connect with one another when the devil or your circumstances will constantly keep you isolated and want to separate you from the world. Choosing scripture over self-criticism and choosing trust when clarity is absent. मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहता हूं खास इस बात के कि अगर आप प्रैक्टिकली अपनी जिंदगी में खुशी और शादमानी को देखना चाहते हैं तो इस तजर्बे को कीजिए.
नेमिंग वन थिंग यू आर ग्रेटफुल। हर रोज एक बात अपने लिए कहिए जिसके लिए आप खुदा के शुक्रगुजार हैं। जब हम अपनी तरफ कई दफा देखते हैं, हम दूसरों को कहते हैं पर अपनी ब्लेसिंग्स हमें नजर नहीं आ रही होती। एंड दिस इज डेविल वांट्स अस टू डू कि वो सानू साडियां बरकतां नजर ही ना आंदे। नेमिंग वन थिंग, एक बात रोज उठ के कहें जिसके लिए आप शुक्रगुजार हैं। फिर आप वर्शिप चूज करें, उसकी सिताइश करना चूज करें। अपने इमोशंस पर ना देखें, अपनी दर्द को ना देखें, अपने गले को ना देखें। अगर गा नहीं सक रहे, आप सिजदे में गिर जाएंगे, आपके आंसू बहेंगे, फिर भी वर्शिप कबूल होगी। वो भी वर्शिप है। वर्शिप सिर्फ म्यूजिक से नहीं है, वर्शिप आपके आंसू भी हैं, आपकी खामोशी भी है। और फिर चूज करना, दुआ करना। आप तन्हाई में बैठे हैं, कई दफा हम स्क्रॉल करना शुरू कर देते हैं। चूज करें कि आप ये वक्त आपको खुदा ने दिया है, चंद लम्हे दुआ में गुजारें, अपनी परेशानियां उसके हाथों में दें। फिर खुदा के कलाम को खोलें, जो हमारी उम्मीद है, जो हमारी खुशी है, जो हमारी शादमानी है। क्योंकि जब आप खुदा के कलाम को खोलेंगे तो वो आपकी जिंदगी में शादमानी को भर देगा। और फिर एक और चीज, अगर कुछ चीजें जैसे बयान किया गया, चूजिंग ट्रस्ट व्हेन क्लैरिटी इज एब्सेंट, जब अंधेरा है, जब कुछ समझ में नहीं आ रहा, जब सारी चीजें धुंधली हैं, हर चीज फॉगी है, धुआं है, आपको क्लियर पाथ नजर नहीं आ रहा, तो फिर आप खुदा पर भरोसा करना सीखें, बिकॉज ही इज योर एंकर। फिर आप उस पर भरोसा करना सीखें क्योंकि वो हमारी जानों का लंगर है। आमीन। So the final thought that I want to leave you with here today as you go about your remaining few days before Christmas is simply this. We want to release you of the pressure that you have to feel joyful instantly. We want you to be free from this lie that the world tells, that if you didn't do Christmas the right way, if you didn't have enough parties, or if you didn't have family gatherings, if you don't have it done a certain way, then you failed Christmas. You didn't. We want you to feel free from that burden that the world sets. And instead, we want you to choose to walk in joy intentionally. Over time, your heart will follow where the truth consistently leads. मैं ये चाहता हूं कि जब आप अपने घरों में जाएं तो इस चीज से आजाद होकर जाएं कि आपने इस सीजन में क्या अचीव किया है। आपकी पार्टीज कैसे थी, आपकी पार्टीज फेल हुई, आपकी पार्टीज में क्या कुछ हुआ। दुनिया आपको फर्क जाएगी, दुनिया आपको डिफरेंट तरीके से बात करेगी कि आपने ये अचीव किया है। फॉरगेट अबाउट अचीवमेंट, आपने इस सीजन में क्या अचीव किया है। द जॉय इज डिफरेंट। जो शादमानी है यीशु मसीह की, वो डिफरेंट है। मैं ये चाहता हूं इस बर्डन को अपने ऊपर से हटा दें। कितने लोगों ने आपकी तस्वीर को लाइक किया, डिसलाइक किया, क्या कमेंट दिए, क्या हुआ है। फॉरगेट अबाउट ऑल दीज थिंग। जो भी डेविल आपके इर्द गिर्द आपको डाल रहा है, तो आपका ध्यान रियल जॉय से हटा दे, शादमानी से हटाए जो खुदावंद ने आसमानों से आपके ऊपर भेजी। आप यीशु पर फोकस करें जब आप अपने घरों में जाएं। I want to leave you with this final piece of advice that was given to me by a pastor, and it really stuck with me for a long time. It still does. एक खुदावंद के खादम ने मुझे ये एडवाइस दी थी, तो मैं वो आपके सामने रखना चाहता हूं। He said, "Do not make decisions to please the world that was disappointed with a man that was perfect and crucified Jesus himself." आप अपने जो डिसीजंस हैं, अपने फैसले लोगों को देखकर ना बनाएं। Because that same world had problems with Jesus Christ, who was perfect. And so you will for sure continue to face criticism with the choices that you make. क्योंकि आप लोगों को खुश नहीं कर सकते। यही वो लोग हैं जो हमेशा यीशु को भी क्रिटिसाइज करते थे। He was perfect in his all work. तो आप लोगों को खुश करने के लिए फैसले ना बनाएं। आप ये देखें कि आप मसीह को कैसे खुश कर सकते हैं, मसीह आपके किस एक्शन से खुश होगा। वो फैसला करें जिहदे च रब खुश है, जिसमें यीशु खुश है।
So choose joy. Remember what Jesus says about joy, and remember that joy begins with removing fear. God bless you. याद रखें, इस चीज को याद रखें, क्रिसमस इज ऑल अबाउट जॉय। और ये खुशी दुनिया नहीं दे सकती थी, ये खुशी दौलत नहीं दे सकती थी, ये खुशी सिर्फ आसमानों से आई। चूज जॉय, खुश रहना सीखें। क्यों हम परेशान हैं, क्यों दुख में हैं, क्यों तकलीफ में हैं, जबकि हमारी जानों का एंकर यीशु है, जिसने हमें संभाला है। वो अपने कुदरत के बाजू से मुझे और आपको संभालता है, हमें सहारा देता है। उसने कहा, आई विल नेवर लीव यू नॉर फॉर सेक यू। मैं दुनिया के इंतहा तक मैं तुम्हारे साथ हूं। आपके साथ रहने वाला खुदा इंसान बनकर इस दुनिया में उतर आया। यू हैव टू चूज जॉय। आपको खुश रहना सीखना है। अपने जज्बात, अपने सर्कमस्टांसेस, अपने हालात, अपने इमोशंस को ना देखें। इमोशंस आपको पता है क्या करते हैं? ये थोड़ा जा मैं दस रहा था थे। इमोशंस क्या करते हैं? इमोशंस ये करते हैं कि वो आपको हर वक्त प्रॉब्लम में रखेंगे। डेविल, इमोशंस हमारे डेविल की तरफ से होते हैं। पर जो खुदा के लोग हैं वो अपने इमोशंस को नहीं देखते। आपने लिखा है करंथियों के खत में, मोहब्बत साबिर है। जेड़ा तानू तंग करदा रहे हो तुसी किवें सबर करोगे? जेड़ा दुख देंदा है तुसी किवें सबर करोगे? जो परेशान, जो दुखी, तकलीफ हर वक्त आपको पत्थर मारता हो, कैसे आप अपने दुश्मन के लिए दुआ कर सकते हैं? पर ये वही लोग कर सकते हैं जिनके अंदर द क्रिएटर ऑफ जॉय बसता है, जिनके अंदर यीशु बसता है। वही अपने दुश्मन के लिए भी दुआ कर सकते हैं, वही रियल खुशी को एक्सपीरियंस कर सकते हैं। उनके चेहरों पर ही स्माइल हो सकती है, क्योंकि वो ये जानते हैं कि दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगी। लोग आपको जो मर्जी करें, हालात कैसे भी हों, लोग आपको जो भी कहेंगे, जैसा बेटे ने बताया है, मॉडर्न वर्ल्ड वो ये फील करवाता है कि यू आर एम्प्टी। आपने सही प्रोग्राम नहीं की। हमने कई दफा प्रोग्राम किए तो लोग कई दफा आगे कहते एदे च ए भी हुंदा ना तो फिर बड़ा अच्छा सी। मैं सोचता हूँ यार ये मैं नहीं पूरा कर सकता, मेरी तो अद्धी जिंदगी गुजर गई है करते करते। तो उनके ज़हन में कभी मैसेज दूं तो उनके ज़हन में एदे च ए वाला जुमला भी ला देंदे ना, ए वाला पॉइंट ते बड़ा मजा आना है। तो मैं कह जे तुहानू पता है तो ठीक है, तुसी समझ लो, मैनू जेड़ा खुदा ने दिता सी मैं दस छड़े। सो रियल जॉय इज नॉट अबाउट what is happening around you or surround you. Real joy is connected with Jesus. He is your anchor. वो आपकी जानों का लंगर है। ए हुन तुसी चूज करना है, रो के जिंदगी गुजारनी कि हंस के गुजारनी। उन्हें तो क्या है मैं लंगर हाँ, वो कश्ती च भी है। क्यों जी सर, ऐसे ही है। उसने तो कहा है कि मैं हूं, दिन तो चढ़ गया है, हुण उन्होंने मायूसी च गुजारो, दुख च गुजारो, परेशानी च गुजारो। क्रिसमस नु सिर्फ सजाए, आज बहुत सारे घर सजे हुए बहुत हैं पर घरां च खुशी नहीं जे। गलियां, शॉपिंग मॉल सजे हुए हैं पर रियल जॉय नहीं है, क्योंकि वहां पर जीसस नहीं, वहां पर सेंटा क्लॉस है। वहां पर जीसस नहीं, वहां पर दूसरा है, वो वहां पर दूसरी चीजों है। So when Jesus is there, when you will choose Jesus, I want to be joyful. मैं खुश होना चाहता हूं। यीशु तू मेरे लिए डर खत्म कर देता। मैं नहीं डरांगा क्योंकि तू मेरे नाल है। मैं नहीं डरांगा क्योंकि तू कह कि ये ज़ाहिरी खुशी यीशु साडी अंदर दी खुशी वेखता है। तो जो लोग ज़ाहिरी चेहरों को भी देखते हैं, मैं आपको हकीकत बताना चाहता हूं, डोंट मेक डिसीजंस टू सी फेसेस, क्योंकि खुदा दिलों पर निगाह करता है और आपके जज्बात आपको उस तरफ लेकर जाएंगे। जज्बात पर हमेशा डेविल कंट्रोल करता है, ये याद रखना। जज्बात आपको कहेंगे इन्हों जरा फाड़सू, ये इंज किवें कह के गया है, इसको जरा गिरेबान पकड़, इसको जरा दो बातें सुना। जज्बात आपको ये करेंगे, लेकिन आपने क्या करना है? यीशु मसीह के नाम से दूर हो।
मेरा एंकर यीशु है जिसने सब कुछ सहा। तो मैं आखिरी आयत पढ़ के चाहूँगा कि फिर हम दुआ करें। गलतियों के ख़त में, इब्रानियों के ख़त में ये हवाला दिया गया है। बाइबल में लिखा है 12वें बाब में, उसमें ये हवाला है कि हम और ईमान के बानी और कामिल करने वाले यीशु को तकते रहें, जिसने उस खुशी के लिए, किसके लिए? उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना की, ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठ। मेरी ये रिक्वेस्ट है, जैसा बेटे ने शेयर किया है, दैट वाज हिज बर्डन। मैंने कहा व्हाई डोंट यू शेयर। तो आज मैं आपके साथ खड़ा होकर और हम दोनों बात करते हैं। सो दैट वाज द बर्डन कि हम अपने यीशु को देखें जो हमारी खुशी के लिए जान थी। टेक रियल जॉय। मे गॉड ब्लेस यू।